Assalamu alaikum to all my dear friends. I am Mohammad Yayu of class 12 from Syed Hamid Senior Secondary School, and currently I am studying in Revolution Academy, Aligarh. And our respected teachers, Asad sir and Kaji sir teach us. And today I am in front of you to present the chapter Principle of Management Part B, Principle of Scientific Management by F.W. Taylor. So before starting this topic, we need we, we need to know about the basic information of F.W. Taylor. Basically, F.W. Taylor, also known as Frederick Winslow Taylor, he was born in 1856, Philadelphia, US, and he was an engineer known as father of scientific management. Basic information of F.W. Taylor. F.W. Taylor, also known as Frederick Winslow Taylor, he was born in 1856, Philadelphia, US. He was an American engineer, and he was also known as father of scientific management. He started his career as an engineer in medieval steel work. Later he became an chief engineer. बाद में ये चीफ इंजीनियर बन गए थे. पहले ये बेसिकली एक छोटे लेवल पर इंजीनियर थे. टेलर taught that they scientifically analyze work, it would be possible to find one best way to do it. उन्होंने एफ.डब्ल्यू. टेलर ने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि जाके ताकि बिजनेस में आसानी हो जाए, तो उन्होंने बेसिकली साइंटिफिक प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया. इनकी फेमस बुक है प्रिंसिपल ऑफ एंड मेथड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि 1911 में आई पब्लिश हुई थी, और इनकी डेथ 1915 में हुई थी. Meaning of scientific management. Scientific management refer to the application of science to management practices. It involves the replacement of rule of thumb or trial and error method of scientific and systematic approach of design. Decision making. साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली ये होता है कि अगर आप कोई भी डिसीजन लें बिजनेस के अंदर, तो वो साइंटिफिकली होने चाहिए, और बिजनेस के अंदर रूल ऑफ थंब, जैसे कि जो पुराने तरह के ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं, उसको खत्म करके नए रूल्स अप्लाई करने चाहिए बिजनेस में, ताकि बिजनेस की ग्रोथ हो सके. Scientific management definition. Scientific management means knowing exactly what you want to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. Scientific management basically ये होता है कि कोई भी बंदा अगर किसी जगह काम कर रहा है, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि वो किस तरह से परफॉर्म करे, और उसका बेस्ट वो किस तरह अपना बेस्ट दे सके, और कंपनी की ग्रोथ हो सके, और रिसोर्स का पूरी तरह से यूज हो सके. Object of scientific management. Basically, there are four objects of scientific management. First is increase production, second increase quality, third is reducing cost, and fourth is reducing wastage. हम बिजनेस के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकते हैं बाय द हेल्पिंग ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स. Principles of scientific management. Basically, there are four principles of scientific management. First is scientific, not rule of thumb. Second is harmony, not discard. Third is cooperation, not individualism. And fourth is development of worker to the greater efficiency and resources. फर्स्ट इज साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें ये पुरानी तरह की ओल्ड मशीनरी है, और इसको रिप्लेस करके हम न्यू मशीनरी ले आए, जिसकी वजह से बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो पाई है और बिजनेस अच्छे से ग्रो कर पा रहा है. हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड. बेसिकली इस प्रिंसिपल में हेनरी फेवल कहना चाहते हैं कि दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड द वर्कर. बिजनेस के अंदर दो तरह के ग्रुप्स होते हैं. फर्स्ट इज वर्कर ग्रुप एंड सेकंड इज मैनेजमेंट ग्रुप. वर्कर ग्रुप को मैनेजमेंट ग्रुप से और मैनेजमेंट ग्रुप को वर्कर ग्रुप से हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं. इसी वजह से एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इस प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हार्मोनी को बताया. हार्मोनी बनानी चाहिए बिजनेस के अंदर, कोऑर्डिनेशन को मेंटेन कर रहा है ताकि बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो सके. थर्ड इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल.
बेसिकली ये प्रिंसिपल हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड का एक अपडेट वर्जन है। इसको वो हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड एक नैरो कंसेप्ट है और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है। इसके अंदर हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड इंक्लूड होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि बिजनेस के अंदर वर्कर ग्रुप को डिसीजन मेकिंग में हिस्सा देना चाहिए ताकि बिजनेस की ग्रोथ हो सके। Fourth is development of each and every person to his greater efficiency and prosperity. Industrial efficiency depends on the large extension personal competencies under scientific management. Right men are selected for a right job. The procedure for the selection of worker should be designed scientifically. The management and the worker should achieve maximum output in the place of restricted output. किसी भी कंपनी के अंदर उसके बेस्ट रिसोर्सेस उसके ह्यूमन एम्प्लॉयज होते हैं। अगर ह्यूमन एम्प्लॉयज अच्छे होंगे तो डेफिनेटली बिजनेस के अंदर ग्रो हो पाएगी और रिसोर्सेस का पूरी तरह से यूज कर पाएंगे हम लोग, जिसकी वजह से बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो पाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग मिलकर ये बिजनेस के आउटपुट को अचीव करने में लगे, क्योंकि इनके अंदर हार्मोनी नहीं है और कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। और इनमें हार्मोनी भी है और कोऑर्डिनेशन भी, इस वजह से ये कंप्लीट अचीव कर पा रहे हैं। मेंटल रेवोल्यूशन बेसिकली ये एक टेक्निक है जो कि आगे आएगी। The basic idea behind the principle of scientific management is to change the mental attitude of the worker and the management toward each other. Taylor called the mental revolution. किसी भी कंपनी के अंदर रिसोर्सेज को यूज करने के लिए मेंटल रेवोल्यूशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी में सेटिस्फेक्शन एक दूसरे से होगी, कोऑर्डिनेशन। बेसिकली देयर आर 5 techniques of scientific management. First is functional foremanship, and second is standardization and simplification. Third is work study. Fourth is mental revolution. So let's start this scientific technique of management. First is functional foremanship. In this technique, Taylor suggests that division of factory into 2 departments, planning department and production department. F.W. Taylor suggests that specialization should be introduced in the factory. He advocates functional foremanship. For this purpose, functional foremanship is a form of organization which involves supervision of a worker by 8 specialist foremen. Each worker will have to treat. बेसिकली फंक्शनल फोरमैनशिप में ये होता है, एक किसी भी फैक्ट्री के अंदर 2 तरह के ग्रुप को डिवाइड कर दिया जाता है। एक ग्रुप प्लानिंग करता है और दूसरा ग्रुप उसको एग्जीक्यूट करता है। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट में आते हैं वो रूट क्लर्क्स होते हैं और जो इसको इनिशिएट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वो बॉसेस होते हैं। देयर आर 8 बॉसेस इन दिस। फर्स्ट इज प्लानिंग इंचार्ज। इन दिस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लानिंग इंचार्ज: प्लानिंग क्लर्क, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम कॉस्ट क्लर्क, शॉप डिसिप्लिनियर, and production in charge, gang boss, repair boss, speed boss, and inspectors. Standardization and simplification of work. Standardization involves setting up of the standard in every phase of business operation. It includes uses of standard tools and equipment, method or lines of product, working condition, etc. for maximum output. किसी भी फर्म के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कुछ टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसे हम साइंटिफिक टेक्निक कहते हैं, और इन्हीं को फॉलो करके हम स्टैंडर्ड अपना मेंटेन कर पाते हैं। Method study are basically there are 4 types. First is time study, motion study, method study, and fatigue study. मेथड स्टडी में ये होता है कि आप किस तरह के मेथड्स का यूज करके कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं। मोशन स्टडी में ये देखा जाता है, ओनर ये चेक करता है कि कोई भी वर्कर कितना मोशन कर रहा है और कितने मिनिमम टाइम में वो वर्क को कंप्लीट कर पाता है।
Fatigue study. Fatigue study continue work causes physical or mental fatigue. Fatigue study try to identify the amount and frequency of rest required in completing the work. Rest pauses, and intervals should be scientifically determined. I have a question. How can we remove the fatigue among the employers or worker in the organization? बेसिकली हम जो फटीग स्टडी है वो टाइम से होती है, तो FW टेलर ने ये तय किया है, उन्होंने एक वर्क को एक कोई भी वर्क होता है उसको वर्क को टाइम में डिवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से वो अपने काम को अच्छे से अचीव कर पाते हैं। उन्होंने 4 घंटे का टाइम 4 घंटे काम करने के बाद 4 घंटे का रेस्ट दिया है, जिसकी वजह से ये लोग अच्छा वर्क कर पाएंगे। वर्क स्टडी वर्क डिफरेंशियल पीस सिस्टम। अभी फैक्ट्री के अंदर 2 तरह के ग्रुप होते हैं, एक प्लानिंग ग्रुप होता है और एक प्रोडक्शन ग्रुप होता है। FW टेलर ने बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी लाने के लिए इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया है। बेसिकली प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 तरह के लोग होते हैं, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम कॉस्ट क्लर्क एंड शॉप डिसिप्लिन। रूट क्लर्क का काम ये होता है कि वो बिजनेस के अंदर वर्क जो बिजनेस के अंदर किसी भी एम्प्लॉय का जो वर्क होता है उसको असाइन करता है, और इंस्ट्रक्शन क्लर्क का वर्क होता है जो रूट क्लर्क ने वर्क दिया है उनको, तो उसको इंस्ट्रक्ट कर लोग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, उनको उसका काम इंस्ट्रक्ट करने का काम इसका होता है रूट क्लर्क का। और टाइम कॉस्ट क्लर्क ये देखता है कि कोई बंदा कितने टाइम में कितना काम कर पा रहा है। शॉप डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि कोई भी एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है और डिसिप्लिन बना कर रख रहा है नहीं रख रहा है उसके अंदर बिजनेस में। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 तरह के लोग होते हैं, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर। गैंग बॉस मशीनरी वगैरह अवेलेबल करवाता है बिजनेस के अंदर। रिपेयर बॉस उनकी मशीनरी की रिपेयर वगैरह कराने की मदद करता है। स्पीड बॉस ये देखता है कि काम कितनी तेजी से हो रहा है, और इंस्पेक्टर बिजनेस के अंदर क्वालिटी को चेक करता है बार बार। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम is a system of wages payment in which efficient and inefficient worker are paid at different rate. Taylor has suggested 2 types of wages for similar work: higher wages for efficient worker and lower wage for inefficient worker. Basically टेलर ने 2 तरह के ग्रुप्स बनाए हैं बिजनेस के अंदर, एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर का। तो उस FW टेलर ने फैसला किया कि एफिशिएंट वर्कर्स को सैलरी अलग तरह से दी जाएगी और इनएफिशिएंट वर्कर को सैलरी अलग दी जाएगी। जो जितना काम करेगा उसको उसके हिसाब से सैलरी दी जाती है। इफ यू हैव एनी डाउट